ریاستی اسمبلی و کونسل کے کل 7 ستمبر سے شروع ہونے والے اجلاس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اجلاس صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی اور کونسل، دونوں ایوانوں کے اسٹاف ارکان، سیکورٹی عملے اور اسمبلی اور کونسل میں تعینات کی جانے والے پولیس ملازمین کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے طلب کیے گئے کئی پولیس ملازمین اور میڈیا کے 2 نمائندوں میں کووڈ-19 پازیٹیو پایا گیا۔ کل سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس کے سلسلے میں ریاستی وزراء نے آج کووڈ-19 ٹیسٹ کروائے۔ آج اسمبلی میں اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ جن وزراء کے ٹیسٹ نیگیٹو پائے گئے ان میں ریاستی وزیر اینیمل ہسبینڈری ٹی سرینواس یادو، ریاستی وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڑ قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ مجلس اسمبلی کوثر محی الدین کے نتائج بھی منفی آئے ہیں۔ انہوں نے کل گولکنڈہ کے ایریا ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروایا تھا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی عوام سے ووٹ مانگنے کے حق سے محروم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ان سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد، کھمم اور ورنگل میں آئندہ 6 ماہ میں ہونے والے انتخابات کے لیے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ پھر سے سرگرم ہو گئے اور جائزہ اجلاس منعقد کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ 6 سال قبل کیے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ کانگریسی رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ وہ 3 اکتوبر سے اپنے پارلیمانی حلقے ملکاج گیری کے تمام ڈویژنوں کا دورہ کریں گے اور حکومت کی ناکامیوں کو آشکار کریں گے۔ جے گوڑا مسلک گزشتہ 6 ماہ سے بند ہے۔ وہاں کام کرنے والوں نے اس کی دوبارہ کشادگی کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ انہوں نے متعلقہ مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور ٹی آر ایس کے کارپوریٹر مترا کرشنا سے کئی بار اس ضمن میں نمائندگی بھی کی، لیکن مسلک کو کھولنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ ان کا بیان ہے کہ مسلک بند رہنے کی وجہ سے جی ایس ایم سی کا نقصان تو اپنی جگہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں کام کرنے والے سینکڑوں لوگوں کی گزر بسر کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دھرنا کی اطلاع ملتے ہی کارپوریٹر مترا کرشنا وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے احتجاجی ملازمین سے وعدہ کیا کہ وہ اس خصوص میں ضروری اقدامات کے لیے حکام سے نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلک کو کھولنے کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ یہاں سماجی فاصلے کی برقراری رکھی جائے، نیز وہاں آنے جانے والے اور کام کرنے والے لوگوں کا ماسک پہننا اور صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ ضلع رنگاریڈی میں فارماسٹی کے قیام کے لیے غریب اور دلت طبقات کے اراضیات کے جبرن حصول کے خلاف تاڑپتری موضع ابراہیم پٹن کے کئی بی جے پی کارکنوں نے دھرنا دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جبرن اراضیات کے حصول کے بجائے مالکین کو اس کے واجبی قیمت ادا کرے اور جو اراضی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جہاں کہیں بھی حکومت نے خانگی کمپنیوں کے لیے اراضی حاصل کی، انہیں اس کا واجبی معاوضہ اور روزگار کی فراہمی کا وعدہ کیا، مگر اس پر اب تک عمل نہیں کیا گیا۔ بی جے پی ضلع رنگاریڈی کے صدر بی نرسنگ ریڈی نے اس دھرنا کی قیادت کی۔ حیدرآباد کے مشہور انگریزی اخبار دکن کرونیکل کے سینکڑوں ملازمین کو ایک طویل عرصے سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ اس سے متعلق شکایت پر پریس کونسل آف انڈیا نے ایک معاملہ درج کیا ہے۔ صدر نشین کونسل جسٹس سی کے پرساد نے بتایا کہ دکن کرونیکل ہولڈنگ لمیٹڈ کووڈ-19 کی وبا کے آغاز سے اب تک اپنے صحافی اور غیر صحافی ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کیا ہے۔ سینئر ٹی آر ایس لیڈر اور ریاستی وقف بورڈ کے رکن محمد وحید احمد نے ریاستی سیکریٹریٹ کی نئی عمارت میں 2 مساجد کی اسی مقام پر تعمیر کرنے سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کے امین ہیں اور وہ اس کے فروغ کے لیے ہمیشہ کئی اقدامات کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ میں ایک مندر کے ساتھ ساتھ ایک چرچ بھی تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے چیف منسٹر عوام کے تمام مذاہب کو یکساں مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ سنگاریڈی کے کانگریسی رکن اسمبلی ٹی جے پرکاش ریڈی نے اعلان کیا کہ وہ کل سے شروع ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں عوامی مسائل کو بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ ان کے حلقہ انتخاب کے کئی مسائل حل طلب ہیں، خاص طور پر پانی کی قلت کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مانجرا اسٹنگور سے سنگاریڈی کو جو پانی سربراہ کیا جا رہا تھا اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جے پرکاش ریڈی عرف جنگاریڈی نے کہا کہ وہ حکومت کی توجہ اس کے کیے گئے وعدوں کی طرف کروائیں گے۔ سنگاریڈی میں میڈیکل کالج کا قیام بھی ایک وعدہ تھا جو اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ 57 برس کی زائد عمر کے لوگوں کو دیے جانے والے ماہانہ 3000 روپے کے وظیفے کو جلد سے جلد شروع کرے۔ حیدر شاہ کوٹ سن سٹی میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کا بے ایمان انداز میں قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وشال اور اس کی بیوی کے مابین ایک عرصے سے جھگڑا چل رہا تھا۔ کل رات بیوی نے اپنے شوہر پر چاقو سے حملہ کر دیا۔
विशाल दवाखाना ले जाने के रास्ते में फौत हो गया। पुलिस राजेंद्र नगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। एक कमसीन लड़की को मुसलसिल 2 साल से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एक 26 साल शख्स अरबा साबरी को कंचनबाग पुलिस ने पॉस्को कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वो लड़की और उसके खानदान वालों को मामला दबाने पर जोर दे रहा था और धमकियां भी दे रहा था। समाजी जहदकार और मशहूर वकील जया विंदियाला, लड़की के वालिद सैयद सईद अहमद और दूसरों ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि अरबा साबरी की धमकियों की वजह से वो बाबानगर से अपना घर खाली करके पहाड़ी शरीफ को मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए थे। सदर शोबे अखिलियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने सेक्रेटरीट में दोबारा मसाजिद की तामीर से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के तयख्खुन पर अपने गहरे शुबात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वादे करने और फिर उनसे मुनरिफ हो जाने की अपनी तारीख रखते हैं। अब तक मुसलमानों से जो वादे किए गए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। समीर वलीउल्लाह ने सिलसिले में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने 6 साल कबल किए गए उनके वादे का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें तावक्त के चीफ मिनिस्टर अपने वादे को अमली जामा न पहनाएं। बल्दी डिवीजन नाना नगर के तहत मेराज कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में आई है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से उनके अवामी मसाइल पर बातचीत भी की और उनके हल का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एरिया सभा मेंबर्स और दूसरे भी मौजूद थे। हिंदुओं की तंजीम विश्व हिंदू परिषद की तेलंगाना यूनिट ने सेक्रेटरीट में 3 मंदिरों को मुनज़्ज़म किए जाने का दावा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मनादिर को उसी जगह तामीर किया जाए क्योंकि उसकी अपनी तारीखी अहमियत भी है। विश्व हिंदू परिषद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मनादिर की तामीर के मंसूबे पर बातचीत के लिए हिंदू मजहबी कायदीन का इजलास तलब करें। कोविड-19 के चलते मेट्रो रेल हैदराबाद ने कल से शुरू होने वाली अपनी सर्विस के दौरान डब्बों में ताज़ा हवा को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड NVS रेड्डी ने बताया कि डब्बों में नस्ब एयर कंडीशन सिस्टम 75% ताज़ा हवा छोड़ सकता है। डब्बों में दर्जे हरारत को 24 से 30 डिग्री रखा जाएगा। हर स्टेशन पर 30 सेकंड के लिए ट्रेन के तौक़ुफ़ के दौरान भी दरवाजे खुले रहने की वजह से डब्बों में ताज़ा हवा दाखिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि हर स्टेशन पर मुसाफिरीन की टिकट की खरीदी से कबल स्क्रीनिंग की जाएगी और बुखार जैसी अलामत रखने वालों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंचियाल के एक टीचर ने एक देही इलाके के तुलबा को टीवी का तोहफा दिया ताकि वो कोविड-19 के चलते शुरू करदा ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा कर सके। सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर डी सुशांत को मालूम हुआ कि कोतापल्ली मंडल के मौजे एंसवाली के तुलबा टीवी खरीदने के मुतमिल नहीं है। चुनाचे उन्होंने 15,000 का टीवी खरीद कर उसे अतिया दे दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हफ्ते को उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब उनकी बुलेट प्रूफ कार चोटुपल के करीब कौमी शाहराह 65 पर एक हादसे का शिकार हो गई। साबिक चीफ मिनिस्टर अमरावती से हैदराबाद आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के आगे चलने वाली जैमर वाली कार गाय को बचाने की कोशिश की और अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। फिर हुआ ये कि काफिले में शामिल गाड़ियां एक दूसरे में घुस गईं। काफिले में शामिल 8 के मुजमला 3 गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद चंद्रबाबू नायडू दूसरी गाड़ी में हैदराबाद पहुंच गए। मशरकी गोदावरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में रखी गई चैरियट को आग लग गई। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। सब इंस्पेक्टर टी गोपाल कृष्णा ने एक मुकदमा दर्ज किया है। फिल्मी अदाकारा रिया चक्रवर्ती को आज मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें पुलिस के जबरदस्त स्कॉट में लाया गया था। इसके बावजूद वहां मौजूद लोग और मीडिया के नुमाइंदों ने उनको घेर लिया। कई मशहूर शख्सियतों ने मीडिया के रवैये को जालिमाना करार दिया और ऐसी हरकतों की मजम्मत की। अदाकारा गौहर खान ने बताया कि मीडिया बदतरीन मुजरिमीन के साथ जैसा बर्ताव करता है उसी तरह फिल्मी अदाकारों के साथ करता है। फिल्म साज सुनील मेहता ने मीडिया पर समाजी फासले की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो जहां भी जाते हैं मीडिया वाले धड़म से घुस जाते हैं। अदाकारा करिश्मा तन्ना ने कहा कि मीडिया में बिन बुलाए मेहमान बहुत हो गए हैं। फिर उस पर यह कि वो सीना जोरी भी करते हैं। केरला के एक्साइज इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 500 किलो गांजा जब्त किया। जिस गाड़ी से ये गांजा जब्त किया गया उसका रजिस्ट्रेशन पंजाब का बताया जाता है। तंजानिया में नेशनल गार्ड के जवानों और दहशतगर्दों के माबैन झड़प में एक गार्ड और 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये झड़प सियाहती शहर सूसी में हुई। पुलिस मजालिम और तासुब के वाकयात के खिलाफ अमरीकी रियासत पोर्टलैंड में कल रात जबरदस्त एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया।
पुलिस ने एहतजाजियों को जो उन पर बोतलें फेंक रही थी काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। मशरकी जर्मनी के शहर लिप्जिग में रिहायशी मकानात के किरायों में इजाफे और किराएदारों के तख्लीक की कार्रवाइयों के खिलाफ अवामी एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। 500 से ज्यादा अफराद ने एक जुलूस भी निकाला था, जिसके दौरान एहतजाजियों ने संगबारी की और कचरे के डब्बों को आग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की एक मस्जिद में एयर कंडीशनर फट पड़ने के वाक़े में महलूकीन की तादाद 24 हो गई। वाज़ेह है कि मस्जिद बैतुल सलात में जुमे को नमाज के दौरान गैस के लीक होने की वजह से एयर कंडीशनर फट पड़े थे। बताया था कि मस्जिद कमेटी ने गैस के लीकेज की मुतल्लिका कौम को इत्तला भी दी थी, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करी। हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 4 कमेटियां तश्कील दी हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,633 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 1065 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 70,626 हो चुकी है। सरदस्त मुल्क में मुतासरीन की जुमला तादाद 31,13,812 बताई जाती है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। सीनियर टीआरएस लीडर और रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मोहम्मद वहीद अहमद ने रियासती सेक्रेटरीट की नई इमारत में 2 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के अमीन है और वे इसके फरोग के लिए हमेशा कई इकदाम करते रहे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट में एक मंदिर के साथ साथ एक चर्च भी तामीर करने का ऐलान किया गया है, जिससे जाहिर है कि हमारे चीफ मिनिस्टर आवाम के तमाम मज़ाहिब को एकसा मानते हैं और इनका एहतराम करते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।